Hello friends, welcome on the Taxation Talk. Hope you all are doing very well. In this video, we are going to discuss the SH1 schedule of the ITR form. There are a lot many practical problems that a taxpayer may face at the time of filling SH1 in the ITR form. SH1 is required to be filed in the ITR 6 form. SH1 requires the details of shareholders, but there are some practical problem in that. So we are going to discuss the solution of these problem in this video. Before starting the video, if you haven't subscribed to my channel, so please subscribe that. So we are discussing that the point of SH1 from the circular number 26 of the 2019. So the first question that this circular clarifying is, in the form ITR 6, an unlisted company other than a startup is required to furnish details of shareholding in Schedule SH1. In a case where shares has been acquired by way of transfer, please clarify how the columns on date of allotment, issue price and amount received should be filled up. The question is saying, कई बार क्या होता है कि हमें जो शेयर्स एक्वायर करें बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र एक्वायर करें, तो उस केस में हाउ टू फिल द डेट ऑफ अलॉटमेंट, issue price and amount received. So we are going to discuss this, and answer to this is, in case shares have been acquired by the shareholder by way of transfer and not by way of allotment made by the company. मीन्स जो शेयर होल्डर को शेयर मिले हैं बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र मिले हैं, उसने डायरेक्टली कंपनी से अलॉटमेंट नहीं लिए हैं. Then the details of shareholding should be entered in the respective column of the table in schedule SH1 as under. Name of the shareholder की column में क्या आएगा? Enter the name of a person holding shares as on end of the previous year. मतलब जो एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर में शेयर होल्डर है उसका ही नाम आएगा. लेट्स सपोज ए ने बी को ट्रांसफ़र करे हैं शेयर्स, तो SH1 में शेयर होल्डर बी का ही नाम आएगा. एंड सेकेंड पॉइंट इज डेट ऑफ अलॉटमेंट. एंटर डेट ऑन विच शेयर्स वर ट्रांसफर टू द करंट शेयर होल्डर एज पर कंपनीज रजिस्टर. मीन्स जिस डेट को ए से बी को ट्रांसफ़र हुए हैं शेयर्स एज पर द कंपनीज रजिस्टर, वो डेट ऑफ अलॉटमेंट में आएगा. थर्ड इज फेस वैल्यू पर शेयर. एंटर द फेस वैल्यू पर शेयर एट विच द शेयर्स हैज़ बीन ओरिजिनली अलॉटेड बाय द कंपनी. लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ने, जो हमारी कंपनी है, उसने ए को अलॉटमेंट दी थी शेयर्स की, एंड देन ए ने बी को ट्रांसफ़र करा है. तो फेस वैल्यू पर शेयर आप किस शेयर होल्डर की देखोगे? आप उस शेयर होल्डर की देखोगे जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है. मीन्स आप ए की शेयर होल्डिंग के टाइम पे देखोगे कि उस शेयर्स में कितनी फेस वैल्यू है. चाहे आप नाम बी का लिख रहे हो, चाहे आप डेट ऑफ अलॉटमेंट बी के लिख रहे हो, लेकिन फेस वैल्यू आपको लिखनी है जो आपने शेयर होल्डर ए के टाइम पे देखी थी. जो शेयर्स शेयर होल्डर ए को मिले हैं उसमें फेस वैल्यू कितनी है वो आपको पुट करनी है. फोर्थ इज इशू प्राइस पर शेयर. Enter the price at which shares were issued by the company to the original shareholder to whom the company has allotted the shares. इशू प्राइस भी आपको वही लेना है जब कंपनी ने ओरिजिनल शेयर होल्डर मीन्स ए को शेयर्स दिए हैं, तो इशू प्राइस कितना लिया था. अमाउंट रिसीव. Enter the total amount received by the company from the original shareholder to whom the allotment of shares has been made up to the end of the previous year. अमाउंट रिसीव के कॉलम में भी आपको वो अमाउंट लिखना है जो अलॉटमेंट टू द ओरिजिनल शेयर होल्डर के टाइम पे अमाउंट रिसीव हुआ था. मीन्स जो अमाउंट ए ने बी को दिया था वो कहीं मेंशन नहीं होगा.
जो अमाउंट फेस वैल्यू शेयर की थी, जो ए ने बी को दिया, अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, वो आपने नहीं लेनी है। आपने ओरिजिनल शेयर होल्डर की फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस और अमाउंट रिसीव लेना है। नेक्स्ट है, in case of a startup, the detail of shareholding are required to be furnished in Schedule SH2. In cases where shares of a startup company has been acquired by the shareholder by way of transfer, the detail of shareholding should be entered in the respective column of the table in SH2 as under. क्या होता है, जो हमारा स्टार्टअप कंपनीज होती है उनके केस में हमें SH1 नहीं फिल करना होता है, एंड दैट केस वी आर रिक्वायर्ड टू फिल SH2. So in that case, what are the details we are required to be given? नेम ऑफ द शेयर होल्डर आप उसी का लोगे जो हमारा करंट शेयर होल्डर है, सेम एज SH1. डेट ऑफ अलॉटमेंट आप किसकी लोगे? एंटर द डेट ऑन विच शेयर्स वर ट्रांसफर टू द करंट शेयर होल्डर एज पर कंपनी रजिस्टर. मीन्स जिस डेट पे लेट सपोज हम ए एंड बी का एग्जांपल ले रहे थे, तो बी को जिस दिन अलॉट हुए हैं तो बी की डेट ही आएगी. नेक्स्ट है फेस वैल्यू पर शेयर. फेस वैल्यू विल बी ऑफ ओरिजिनल शेयर्स. मीन्स जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है उसको फेस वैल्यू कितनी थी वो आएगी. इशू प्राइस पर शेयर. इशू प्राइस इज दिस. एंटर द प्राइस एट विच शेयर्स वर इशूड बाय द कंपनी टू द ओरिजिनल शेयर होल्डर टू whom द कंपनी हैज अलॉटेड द शेयर. जिस प्राइस पे कंपनी ने ओरिजिनल शेयर होल्डर को शेयर्स इशू करे थे वो इशू प्राइस आएगी. रेदर देन ए ने बी को ट्रांसफर करी वो नहीं आएगी. सेम एज हमारा SH1 ऊपर वाला ही सेम है. पेड अप वैल्यू पर शेयर. एंटर द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी फॉर ईच शेयर फ्रॉम द ओरिजिनल शेयर होल्डर टू whom द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हैज बीन मेड. जो कंपनी ने पेड अप वैल्यू रिसीव करी है फ्रॉम द ओरिजिनल शेयर होल्डर वही आएगी एट द एंड ऑफ द अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, जितना उसने पेड अप अमाउंट रिसीव करा है from the original shareholder. Make sure I am again saying original shareholder. Share premium. Enter the amount of premium per share at which shares were allotted by the company to the original shareholder. शेयर प्रीमियम भी ओरिजिनल शेयर होल्डर की आएगी. तो आप ध्यान रखेंगे, चाहे आप नाम है करंट शेयर होल्डर मीन्स बी का लिख रहे हैं, डेट ऑफ अलॉटमेंट भी बी की लिख रहे हैं, लेकिन फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, paid up value and share premium you will write for the original shareholder. Next step, please clarify whether it is a mandatory to mention PAN of shareholder in SH1 in case where a shareholder is a resident of a foreign company having no PAN, or in case where PAN of a shareholder is not available for any practical reason. It is not possible to fill up PAN of all the shareholder in the schedule SH1. In the SH1 हमें क्या लिखना होता है, हमें पैन लिखना होता है शेयर होल्डर का. तो कई बार क्या होता है हमारे पास वो पैन अवेलेबल नहीं होता. केस क्या हो सकता है, वो फॉरेन रेजिडेंट है, NRI है, तो हमारे पास उसका पैन अवेलेबल नहीं है, और कई बार प्रैक्टिकल रीज़न की वजह से हमारे पास पैन अवेलेबल ही नहीं होता. तो उस केस में वो पैन मैंडेटरी फील्ड है, तो हमें क्या फिल करना है. तो इसमें वो बता रहे हैं पैन ऑफ अ शेयर होल्डर शुड बी मेंशन इन शेड्यूल SH1 इफ अवेलेबल. अगर आपके पास पैन अवेलेबल है तो आप पुट करेंगे. However, in case shareholder is a non-resident and having no PAN, shareholder non-resident और उसके पास PAN नहीं है, a default value can be entered in place of a PAN. तो आप PAN की जगह क्या लिखेंगे, NORES, it's 4 times 9 N then N. These 10 letters you will write in the PAN column. Similarly, in case of a PAN of a shareholder is not available due to any other reason, हमारे पास PAN अवेलेबल ही नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट नहीं है तो रेजिडेंट, लेकिन हमारे पास PAN अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखेंगे NOAVL 4 times 9 and then N. सो पैन मैंडेटरी फील्ड होता है तो हमें कुछ ना कुछ फिल करना ही करना है. तो जो भी हमारा केस होगा नॉन रेजिडेंट का है और नॉन अवेलेबिलिटी का है तो हम इसे पुट कर लेंगे. सो ये दो रीजंस थे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी जो SH1 में एक टैक्स पेयर के पास आ रही थी, उसको इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई करा है. होप दिस वीडियो इज़ वेरी मच यूजफुल टू यू.
So take this information and fill your ITR 6 very correctly. So thank you so much for this video. If you like this video, please hit a like button. Thank you.